Hello students, today we are going to study the topic without which no examination paper can be designed in class 11th, and that topic is projectile motion. This is the importance of this topic, that no paper, nearly no question paper can be designed in class 11th without this topic, projectile motion. Projectile motion is taught in two parts. One is making angle theta with surface, and second is parallel to the horizontal. Now what is the difference between these two? We will talk about it later on. Now first of all, what is projectile motion? Projectile motion होता क्या है? अगर मैं बात करूं कि कोई बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, एक बॉडी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है और बाकी दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन constant है, means its position is changing with respect to only one axis. That means this is a straight line motion. If a body is moving and its position is changing with respect to two axes, that is called planary motion, motion in a plane. Now what about projectile motion? Projectile motion is different from straight line motion and planary motion. It is when we throw an object in air, we throw an object in space, then that object will land back to the earth's surface after making a parabolic path. समझना है इस चीज को. एक ऑब्जेक्ट को जब आप स्पेस में थ्रो करते हो किसी एंगल के साथ, तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ अर्थ पर लैंड हो जाता है. इस मोशन को, दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. Got it? Now first of all we will write down the definition, and after that we will draw the diagram. So when an object is thrown in space, landed back to earth after following parabolic path known as projectile motion. Okay, now we will draw the diagram of projectile motion. That means this is the surface of earth and you projected a body in this direction. This means you gave the initial velocity to the body in this direction, and initial velocity will be represented by u. This body will move like in this direction, and it will go above from the ground, and after reaching to its top point its velocity will become zero. Which velocity will become zero? कौन सी velocity zero हो जाएगी? We will talk about it after 30 seconds. So after reaching to its top point, it will come back to the surface of earth, and this will move like this. Okay, so now we can see that this initial velocity, which is in this direction, having some component in horizontal direction as well as in vertical direction. इस initial velocity का कुछ component horizontal direction में भी है और कुछ component vertical direction में भी है. So to find the horizontal component and vertical component, we will resolve this initial velocity, and it will be resolved like in this manner. Okay, if you didn't got this resolution, then please go to the resolution of vectors video. That is, I think that is video number 6. So you will able to know how to resolve the vectors. So this body, this object is making angle theta with the horizontal surface. So this is ux. Ux means velocity in x-axis or velocity in horizontal direction will be equal to, अगर इसको आप resolve करेंगे and if it is making angle theta with this axis,
So it will be u cos theta and it will be uy which is equal to u sin theta. Okay, so velocity is having two components, u cos theta and u sin theta. Now क्या हो कि मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ये वर्टिकल वेलोसिटी पूरे मोशन के दौरान चेंज होती रहेगी, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये चेंज नहीं होगी। क्या हो अगर मैं आपको ये बात कहूं? मेरे ख्याल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अभी तक समझ ही नहीं आया कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी का फंक्शन क्या है। तो देखिए, उसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने दो पॉइंट्स या कुछ पॉइंट्स ले लिए। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। अब इन पॉइंट्स को लेने का मकसद क्या है? हम यहाँ पे देखेंगे कि जब आपने इसको थ्रो किया था तो वेलोसिटी ये थी, जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा तो वेलोसिटी में चेंज आता जाएगा, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है बॉडी, तो वेलोसिटी तो रिड्यूस होगी ही होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमने अगेन इस वेलोसिटी के दो वेक्टर्स कर लिए। अब देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी u नहीं होगी, क्या होगी? यहाँ पे वेलोसिटी u1। हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये u2 हो गई इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, रिजॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्टिकल कंपोनेंट कोई है ही नहीं, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जाके क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसको रिजॉल्व किया तो देखिए ये एक इस डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी है और उनको हमने रिजॉल्व कर दिया है। Now what I told you that horizontal velocity will remain constant and vertical velocity will keep on changing throughout the motion. Now why the horizontal velocity will remain constant? So for that you have to look at the formula that horizontal velocity is u x is equal to u cos theta and vertical velocity is equal to u y is equal to u sin theta. Now if you look at the formula, now if you are making calculation for horizontal velocity for u1, इस पॉइंट पे अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो देखिए क्या आ गया, ux विल बी इक्वल टू u1 cos थीटा। अब यहां पे अगर आप देखें तो u1 इज लेस देन u1 क्या है? छोटा है u से, u1 इज लेस देन u and this is ux is equal to u1 cos theta। ठीक है, तो वेलोसिटी तो रिड्यूस हो गई, लेकिन अगर एक चीज देखें आप कि यहां पे जो एंगल था क्या उतना ही एंगल यहां पे था? नहीं, उतना एंगल यहां पे नहीं था। आप देखिए आपने बॉडी को थ्रो ऐसे किया था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाती जाएगी ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल इतना बन रहा था स्टार्टिंग में, जैसे वो ऊपर जाएगी ये एंगल रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही तो जाती है ऊपर, तो ये एंगल रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि थीटा इज ग्रेटर देन θ1। उससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपने ये वैल्यू थीटा की कॉस में पुट की तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है आपको सबसे कम एंगल पे 0 डिग्री पे, और मिनिमम वैल्यू मिलती है आपको सबसे बड़े एंगल पे, दैट इज 90 डिग्री पे। बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे जैसे थीटा रिड्यूस होता जाएगा वैसे वैसे उसकी कॉस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप देखिए आपने फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू था 45 डिग्री और θ1 इज इक्वल टू है 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस θ1 या कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। जरा पता करना कि दोनों में से बड़ा कौन सा है? बड़े भाई तो ये है, 1/√2 विल बी लेस देन √3/2। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे? मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि भले ही वेलोसिटी कम हो गई लेकिन थीटा की वैल्यू बढ़ गई, थीटा नहीं बढ़ा,
थीटा तो 45 से 30 पे आ गया, कम हो गया, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ गई। वहां कॉस थीटा की जब वैल्यू बढ़ गई तो इस बढ़ी हुई वैल्यू ने इस रिड्यूस्ड वेलोसिटी को कॉम्पनसेट कर दिया। कॉम्पनसेट करने का मतलब क्या है कि दोनों का मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल पहले 25 था तो दोनों का मल्टीप्लाई अब भी कितना रहेगा, 25 रहेगा। एक रिड्यूस हो गया तो दूसरा क्या हो गया, बढ़ गया। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। अब वर्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो अगेन ये आपने यहां पे लिखा क्या, u1 इज ग्रेटर देन u, मतलब जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था वो ज्यादा है किससे, सॉरी u इज ग्रेटर देन u1, जिससे आपने थ्रो किया था वो इस पॉइंट पे वेलोसिटी से ज्यादा है। चलिए θ1, थीटा इज ग्रेटर देन θ1, तो अब uy इज इक्वल टू u1 sin थीटा। अब देखिए u1 तो रिड्यूस हुआ ही, लेकिन थीटा क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। अब अगर थीटा रिड्यूस हुआ है तो साइन थीटा का क्या होगा, तो जरा देखिए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है आपको मैक्सिमम एंगल पे, मतलब बढ़ते हुए एंगल 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है 1 और मिनिमम वैल्यू मिलती है 0 पे, 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जैसे ही आप थीटा में 90 से नीचे आते जाएंगे आपको वैल्यू घटती हुई मिलती जाएगी, रिड्यूस मिलती जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 45 पे इसको थ्रो किया था तो उस कंडीशन में साइन की वैल्यू ज्यादा थी, वर्टिकल वेलोसिटी ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही वो 30 पे आया वर्टिकल वेलोसिटी और ज्यादा कम हो गई। तो वेलोसिटी ये तो कम हुई थीटा भी कम हो गया। तो साइन थीटा मतलब वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। मैंने चेंज बोला है, हमेशा रिड्यूस नहीं होगी। जब ये बॉडी यहां से नीचे आएगी, यहां से नीचे आएगी तो थीटा की वैल्यू देखिए, यहां पे थीटा की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब थीटा की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी तो साइन की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या समझ में आ गया, दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट बट वर्टिकल वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग। तो मैं यहां लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, दैट इज ux, या मैं यहां लिख दूं ux इज इक्वल टू u cos थीटा विल बी constant and vertical velocity that is uy is equal to u sin theta will keep on changing throughout the motion, complete motion में वो change होती रहेगी। Now what are the examples of कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड चेंजिंग वर्टिकल वेलोसिटी? तो देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं कि वेलोसिटी हमेशा ट्रांसफर होती है, वेलोसिटी हमेशा ट्रांसफर होती है। बात को समझना कि वेलोसिटी ट्रांसफर कैसे होती है। देखिए एक वेंडर जो चाय वगैरह बेचने वाले होते हैं रेलवेज में, वो जब चलती हुई गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो आपने देखा होगा कि वो गाड़ी से भागते हुए उतरते हैं और थोड़ी देर भागते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसको आप लॉस ऑफ मोशन से भी समझ सकते हैं, जो बॉडी मोशन में है वो बॉडी मोशन में रहेगी। तो वो जो मोशन में थी वो किस वजह से थी? क्योंकि वो ट्रेन में था अभी, तो ट्रेन की वेलोसिटी उसमें आ गई। बात तो समझ में आई? गड़बड़ाना मत कि सर ट्रेन की वेलोसिटी कैसे आ गई उसमें। अरे भैया तुम बाइक पे जाते हो तो बाइक की वेलोसिटी, आप ये थोड़ी ना कहते हो कि बाइक चल रही है, मतलब बाइक जिस स्पीड पे से चल रही है आप भी तो उसी स्पीड पे आगे जा रहे हो, ये तो सोचो ना। तो उसमें भी क्या वेलोसिटी आ गई, वो भी उसी स्पीड से आगे जा रहा था वेंडर जिस स्पीड से ट्रेन जा रही थी। तो जब वो नीचे उतरा तो उसने उस स्पीड को कम करने के लिए उसने थोड़ा सा दौड़ा, फिर वो रुका। ठीक है, तो हमेशा वेलोसिटी ट्रांसफर होती है। कहां से? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। लेकिन कैसे ट्रांसफर होगी? जो बॉडी चल रही है उस पर दूसरी बॉडी रखी हुई होनी चाहिए, तब ये वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है। उसका ही एक एग्जांपल देखिए। वो एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल एक कार है,
ये एक कार है, ये क्या बन गया, चलो जो भी है, ठीक है, ये एक कार है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। क्या हुआ कि इस कार के ऊपर एक बॉल थी, जिस बॉल को शूटर की हेल्प से, बॉल शूटर जो होते हैं उनकी हेल्प से वर्टिकल डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल पे ऊपर उसको फेंक दिया गया, उसको थ्रो कर दिया गया ऊपर, शूट कर दिया गया ऊपर। अब क्या हुआ, ये कार चल के यहां से यहां पहुंच गई। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये जो कार है, ये कार जो यहां से यहां पहुंची है, वैसे कार जैसे ये लग नहीं रही ये कार जो यहां से यहां पहुंची है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है। दूसरा, पहला कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है, दूसरा ये ऐसी जगह पे चल रही है जहां पे एयर नहीं है। हालांकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर एयर नहीं है तो कार चल कैसे रही है, वैक्यूम में तो कार चल नहीं सकती। हाँ अच्छी बात है, नहीं चल सकती, हम इमेजिन कर लेते हैं चल रही है, ठीक है। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि एयर का रेजिस्टेंस नहीं है वहां पे, ठीक है। तो अब ये कार जब यहां से यहां पहुंच गई, तो सवाल ये है कि ये बॉल कहां पे रही होगी, बॉल कहां होगी, ये बॉल क्या पीछे जाके गिरेगी, या बीच में गिरेगी, या कार के ऊपर गिरेगी? आपका आंसर होगा पीछे गिरेगी। या फिर आपका आंसर ये भी हो सकता है ये कार आगे निकल जाएगी तो बॉल यहीं गिरेगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये जो बॉल है, जब इस बॉल को ऊपर फेंका गया तो ये बॉल कहां थी, कार पे थी। तो इसका मतलब जो कार की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो बॉल के पास भी थी, मतलब बॉल भी तो उसी वेलोसिटी पे मूव कर रही थी। तो जब आपने उसको वर्टिकल वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो क्या उसके पास सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी आई? नहीं भाई, उसके पास कार की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी थी, जिस वजह से वो यहां से यहां नीचे वापस नहीं आएगी, वो ऊपर गई वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से, और आगे जो गई वो गई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से जो आपने उसको दे दी थी। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ है तो एक और एग्जांपल लीजिए। देखिए, आप खड़े हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है और रोटेट भी कर रही है अपने एक्सिस पे। रोटेशन स्पीड क्या है? उसकी रोटेशन स्पीड है 450 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या किया, यहां से एक बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, बॉल को ऊपर फेंका, बॉल को नीचे आने में टाइम लगा फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड का। कितना? 2 सेकेंड का टाइम लगा। ऊपर से जब फेंका, ऊपर जाने और नीचे आने में 2 सेकेंड का टाइम लगा। लेकिन अर्थ तो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, तो उसके साथ आप भी तो रोटेट कर रहे हैं, आप भी तो मूव कर रहे हैं। तो क्या 2 सेकेंड में आप यहीं खड़े रहे? जब अर्थ मूव कर रही है तो आप भी तो मूव कर रहे हैं। तो आप 2 सेकेंड में 450 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के हिसाब से 900 मीटर अपनी पोजीशन से शिफ्ट कर गए होंगे। 900 मीटर, 900 मीटर आप 2 सेकेंड में शिफ्ट कर गए होंगे। लेकिन आप देखते हैं कि बॉल जब आप ऊपर फेंकते हैं तो आपके हाथ में ही वो वापस आ जाती है। तो 900 मीटर शिफ्ट करने के बावजूद वो आपके हाथ में वापस कैसे आ गई? वो आपके हाथ में वापस ऐसे आई क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो आपने उसको अपने हाथ से दी थी उसको, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको अर्थ की वजह से मिली, क्योंकि अर्थ पे आप खड़े हुए थे। आपकी स्पीड वो थी जो अर्थ की स्पीड थी, बॉल की स्पीड वो थी जो आपकी स्पीड थी। कौन सी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्या समझ में आ गई बात? तो इसलिए ये यहां से ऐसे आपके हाथ में आई, लेकिन आपको क्या लगता है कि सीधी वापस आ गई। क्या समझ में आ रही है बात? एक और एग्जाम्पल है इसका, और लास्ट एग्जाम्पल है, नहीं लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। देखिए, एक एग्जांपल और क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी फाइटर प्लेन को जो कि चल रहा है आगे, मैंने इसको प्लेन नाम दे दिया, फाइटर प्लेन पी है ये, इसको यहां पे कहीं बॉम्बार्डमेंट करनी है। ये टारगेट है टी, यहां बॉम्बार्डमेंट करनी है। तो देखिए, इस फाइटर प्लेन को जिसके पास बॉम्ब है वो बॉम्ब इसको कहां रिलीज करना चाहिए? क्या इसके ऊपर जाके रिलीज करना चाहिए, इसके ऊपर पहुंच जाए तब छोड़ दे, ऐसा करे, या
पहले रिलीज करना चाहिए या बाद में रिलीज करना चाहिए? गिराएगा ये नीचे ही सीधा। देखिए आपका आंसर ये पहला वाला तो, ये वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा। अरे यार बाद में क्यों गिराएंगे हम, हैं? पता चला पाकिस्तान की बजाय चाइना पे गिर गया तो वो वैसे ही खड़ा हुआ है पेंगोंग पे। तो देखिए, तो ये वाला तो कैंसिल है। अब ये वाला, अगर आप बॉम्ब यहां इस पोजीशन पे गिराते हैं तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो नीचे तो वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से गया, लेकिन बॉम्ब कहाँ था? एरोप्लेन में, और एरोप्लेन मूव कर रहा था। कुछ भी हो सकती है, उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है। तो जो स्पीड एरोप्लेन की या फाइटर प्लेन की, वही स्पीड बॉम्ब की। तो इसका मतलब है कि जब छोड़ा तो उस बॉम्ब के पास कुछ स्पीड वही होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही होगी। तो ये बॉम्ब ऐसे नीचे ना जाके कैसे जाएगा? ये इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, फिर जैसे जैसे ये एरोप्लेन आगे बढ़ता जाएगा ये बॉम्ब नीचे गिरता जाएगा और यहां पहुंच के ये यहां गिरेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो मतलब जहां पे एरोप्लेन होगा हवा में, छोड़ने के बाद, उसको नीचे छोड़ने के बाद जैसे जैसे एरोप्लेन आगे बढ़ता जाएगा वो जो बॉम्ब है वो भी आगे उसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से बढ़ता जाएगा और यहां जाके ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो अगर यहां गिराना है तो कहां छोड़ना होगा? यहां छोड़ना होगा। तो ये आगे यहां आया, ये आया यहां, ये आया यहां, ये आया यहां, उसके बाद ये यहां आया और ये बूम। ये कॉन्सेप्ट होता है। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल, जो पिस्टल शूटर्स होते हैं, पिस्टल शूटर तो समझ गए ना? जो पिस्टल शूटर्स होते हैं वो पिस्टल शूटर्स अगर उन्हें कहीं टारगेट पे फॉर एग्जांपल इस जगह हिट करना है, इस जगह, तो पिस्टल शूटर फॉर एग्जांपल ये है, ये उसकी पिस्टल है। अब मैं पिस्टल पूरी नहीं बना रहा। तो देखिए क्या वो इस डायरेक्शन में इसको हिट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने इस बुलेट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो दे दी, उसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है। तो वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से ये जो बॉल है, ये जो बुलेट है वो यहां से कुछ ऐसे नीचे आ जाएगी। इसलिए जब भी किसी टारगेट को हिट करना होता है तो उसकी जो गन होती है वो ऐसे प्रोजेक्टेड ना रह के थोड़ा सा एंगल पे प्रोजेक्टेड रहती है ऐसे, और ये हिट करती है यहाँ। मतलब इसका टारगेट क्या होता है? ये प्रोजेक्ट इस डायरेक्शन में होती है। तो उस कंडीशन में ये हिट तो यहां करने का सोचेगा, लेकिन ये ऐसे जाके ये ग्रेविटी की वजह से ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला पाथ ले लेगा। हमेशा कर्व पाथ, हमेशा पैराबोलिक पाथ में ही चीजें मूव करती हैं। क्या क्लियर हो गई बात? क्योंकि उनके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों होती है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है और वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है। अब देखिए, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अब हम इसका मेन डेरिवेशन पार्ट पढ़ेंगे। डेरिवेशन में 3 डेरिवेशन करने होते हैं। पहला कि आपने जब यहां से थ्रो किया और ये यहां लैंड हुआ, देन इन दैट फॉर दैट टोटल मोशन you have to calculate time period, and that time period is known as time of flight. Things are flying, so you have to calculate time of flight. Second, what displacement it covered. Displacement कितना हुआ है? That is final position minus initial position. This is horizontal displacement, and horizontal displacement is known as horizontal range, and it will be represented by capital R. So you have to calculate R, and one more thing you have to calculate, that is maximum height, that is H max, at which the vertical velocity will become 0, and I will name it as V by will be equal to 0. So first of all we will start with the derivation of time of flight. So this is the derivation of time of flight. Time of flight. Okay, now for time of flight calculation we will look
ऑन द वैल्यूज, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोज वैल्यूज वी विल कैलकुलेट, वी विल पुट दोज वैल्यूज इन इक्वेशन ऑफ मोशन। हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं और वैल्यूज के हिसाब से चूज करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन कौन सी हम उसमें पुट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं। देखिए फर्स्ट मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट टी। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या है, यू आर हैविंग इनिशियल वेलोसिटी एंड सिंस दिस बॉडी इज मूविंग इन दिस एक्सिस सो इट विल बी uy, you are having vertical velocity. Okay, next vertical velocity is this. Next what about acceleration? आपने किसी बॉडी को अगर थ्रो कर दिया, that means you gave that body to gravity, so here gravitational acceleration will be applied, and gravitational acceleration, since the body is going up in the direction, so the g will be minus, so it will be minus g. Now another thing we are having, if we are talking about vertical velocity, that then what about vertical displacement? Vertical horizontal displacement तो ये हो गया horizontal range. What about the vertical displacement? Vertical displacement कितना हुआ है इसमें, देखिए एक चीज, अगर आप बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की, दैट मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एक्सिस, दैट इज फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। तो फाइनल हाइट कौन सी है, ये, इनिशियल हाइट कौन सी है, ये। और अगर ये सेम सरफेस है तो क्या हाइट में कोई डिफरेंस है, नहीं है, दैट मीन्स कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या आपको समझ में आ गई बात। तो देखिए टी कैलकुलेट करना है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, जी है और डिस्प्लेसमेंट है, कैसे कौन सी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन यहां लगा देते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं, ये सिर्फ एक आइडिया के लिए था कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए वैल्यूज के बेसिस पे। तो देखिए एस वाई इज इक्वल टू, वाई विल बी इन द लोअर सबस्क्रिप्ट, एस वाई विल बी इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो एस वाई इज इक्वल टू 0 and uy is u sin theta into t minus half gt square. So I will take u sin theta in this side, so it will be minus u sin theta t is equal to minus half gt square. So it will cancel this, minus will cancel minus, and I will take 2g on this side, so 2 will go in the numerator part, so 2u sin theta, and g will go in the denominator part divided by g is equal to t. So this is the formula for time of flight. Okay, now we will move for the next part, that is horizontal range. Second, horizontal range. Now horizontal range, and that will be represented by R. Horizontal range is about horizontal displacement. So if you are talking about horizontal displacement, that means horizontal displacement. Horizontal displacement, if you talk about the formula of displacement, that will be velocity multiplied by time, and horizontal displacement will be equal to horizontal velocity into time. So horizontal displacement will be equal to horizontal velocity into time. Now what is horizontal velocity? This is u cos theta into time. What is time? That is 2u sin theta by g. So this is 2u sin theta by g. Now we will multiply this, and I will write down it as u square 2 sin theta cos theta divided by g. Now what is the trigonometric function of 2u sin theta cos theta? This is sin 2 theta. So it will be u square sin 2 theta divided by g. So this is the value of horizontal range. This is
द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल आर। नाउ एक चीज इसमें पढ़ते हैं कि हमें किस केस में मैक्सिमम रेंज मिलेगी। मैक्सिमम रेंज किस मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने एंगल पे थ्रो करें तो वो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम रेंज आपको कब मिल सकती है, जब आप देखें कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये तो आपने एक बार दे दी, जी कांस्टेंट रहने वाला है, किस पे डिपेंड करने वाली है मैक्सिमम रेंज, एंगल पे। तो देखिए एंगल आपके पास sin 2 थीटा है, तो जितनी एंगल पे आपको sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी वही एंगल मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि sin 2 थीटा आपको मैक्सिमम कब मिलता है, साइन की वैल्यू आपको मैक्सिमम कब मिलती है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू sin 90। अब sin 2 थीटा हट गया तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री। तो मेरे भाई 45 डिग्री पे आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। नेक्स्ट एक और चीज कि आपको चाहे आप थीटा एंगल पे किसी चीज को थ्रो करो, चाहे आप इसको 90 माइनस थीटा पे थ्रो करो, आपको वो जो रेंज है वो सेम मिलेगी, सेम रेंज, चाहे थीटा पे थ्रो करो और चाहे 90 माइनस थीटा पे थ्रो करो। आप कहोगे ऐसा क्यों? देखिए अगर मान लीजिए आपने 30 डिग्री पे थ्रो किया तो यहां आपने पुट किया 30, तो 2 इंटू 30 क्या हो गया, तो यू स्क्वायर साइन 60 हो जाएगा, 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 √3/2 वो आप लिख दोगे। नेक्स्ट आपने यहां पुट किया क्या 90 माइनस थीटा, कि 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया है, तो 90 माइनस 30 रखा तो क्या आ गया 60। अब आपने इसको रखा यू स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू 60 पुट किया, 60 इंटू 2 120, ठीक है, अपॉन 90। अब देखिए ये वैल्यू क्या है 120 है, 120 का मतलब क्या है साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 से ऊपर है, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी यू स्क्वायर साइन 60। आपको वैल्यू सेम मिलेगी, दोनों ही केसेस में वैल्यू सेम मिलने वाली है। क्या समझ में आ गई आपको बात? पहले भी सेम मिलती, मतलब साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60 साइन 120 की जो वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू हुआ करती है, दोनों में अंतर नहीं है कोई, तो इसलिए ये वैल्यू हमेशा सेम रहेंगी। क्या बात समझ में आ गई? तो चाहे आप 90 पे उसको थ्रो करें, चाहे उसको 120 पे उसको आप चाहे आप उसको 30 पे थ्रो करें, चाहे 60 पे, सेम आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने इसको 30 पे थ्रो किया तो ये यहां से यहां आके लैंड हो जाएगी, और अगर 60 पे थ्रो किया तो बड़ा पाथ जरूर लेगी, ये बड़ा पाथ जरूर लेगी, लेकिन आएगी वही। समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? दोनों सेम जगह आएंगी। अब इसकी सिग्निफिकेंट क्या है? सिग्निफिकेंट देखिए क्या है कि फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है क्रिकेट में और बैट्समैन को अगर शॉट लगाना है बॉलर के सिर के ऊपर से और उसे बाउंड्री लगानी है, तो देखिए क्या होगा कि अगर वो स्ट्रेट ड्राइव लगाना चाहता है तो वो देखेगा कि लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन पे, फील्डर तो नहीं है, अगर फील्डर है तो कितना पास है और वो बॉल तक कितना जल्दी पहुंच सकता है। अगर जो फील्डर है वो अगर पास में है तो ये जब शॉट लगाता है ये हॉरिजॉन्टल शॉट लगाता है, मतलब कम एंगल में, कम एंगल पे अगर शॉट लगाएगा तो यहाँ साइन 30 अगर पुट करें तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पुट की तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। टाइम कम लगेगा, फील्डर पहुंच नहीं पाएगा और बॉल बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर इसने ज्यादा एंगल पे शॉट लगाया तो उस कंडीशन में टाइम ज्यादा लगेगा, साइन 60 √3/2, साइन 30 से ज्यादा वैल्यू होती है इसकी तो टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगा तो क्या हुआ कि ये दोनों सेम स्पॉट पे जाके लैंड हुई हैं, लेकिन इसको टाइम ज्यादा लगा, इतनी देर में फील्डर नीचे आ गया और रोहित शर्मा आउट हो गए। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज का कॉन्सेप्ट है। 90 थीटा या 90 माइनस थीटा पे आपको सेम रेंज मिलती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है लास्ट डेरिवेशन, मतलब लास्ट तो नहीं कहूंगा, थर्ड डेरिवेशन, दैट इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मींस ये वाली हाइट, ये वाली हाइट आपको निकालनी है। तो देखिए अब एक इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करेंगे इसको हम, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। वैल्यूज क्या क्या है? हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है uy, फाइनल वेलोसिटी भी है क्योंकि यहां के लिए निकाल रहे हैं, तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? vy। अच्छा, यहां से यहां तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दैट इज sy भी हमारे पास है। कितना है sy? दैट इज फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, चाहे इस सरफेस पे लें चाहे इस सरफेस पे लें, दोनों एक ही लेवल पे हैं। तो फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट विल बी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये किसके इक्वल हो गया? एच मैक्स के। ठीक है, तो आपके पास v है, u है, s है, और क्या है आपके पास? माइनस g भी है। तो कौन सी इक्वेशन यहां हम लगा दें? थर्ड इक्वेशन लगा दें। थर्ड इक्वेशन लगा दें तो वैल्यूज आ जाएंगी हमारी। तो इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो मैंने लिखा क्या? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स, एंड नाउ दिस इज 0, so I will put the value of uy is u sin theta, this is u square sin square theta minus 2g h max. I will take u square sin square theta here, so minus u square sin square theta is equal to minus 2g h max. So it will minus will cancel minus, and I will take 2g in the denominator, so h max will be equal to u square sin square theta divided by 2g. So this is the derivation for maximum height. Now एक और derivation है, one more derivation is there in this concept, and that derivation oftenly asked in the examination. ये तीन तो फिक्स रहते हैं, लेकिन वो जो चौथा derivation है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है। Now what is that derivation? वो डेरिवेशन ये कहता है कि आपने कहा कि कोई भी प्रोजेक्टाइल हमेशा पैराबोलिक पाथ अटेन करती है, तो प्रूफ कीजिए कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो पैराबोलिक होता है, और इसको मैथमेटिकली प्रूफ कीजिए। तो हम इसको फटाफट मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। देखिए, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हमें क्या पता होना चाहिए कि पैराबोला प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले you should have the knowledge of equation of parabola, that is equation of parabola is ax square plus bx plus c. Okay, here a, b, c are the constant and x square and x are the variables. Now we have to make a equation, हमें एक इक्वेशन बनानी है प्रोजेक्टाइल मोशन से, कुछ इस तरह से। ये y एक्सिस हो गई इस डायरेक्शन में, एंड दिस इज x एक्सिस। हमें इसके हेल्प से एक इक्वेशन बनानी है जो कि इसके जैसी लगे। तो देखिए, हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प ली, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो अगर मैं बात करूं s मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो पूरा क्या हो गया? दैट इज y, और y के लिए हमने क्या ले लिया? uy इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज टाइम? टाइम कितना लगा? तो देखिए, ये जो आगे गई है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से आगे गई है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से अगर आगे गई है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? दैट इज u cos थीटा इंटू टी। तो t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू cos थीटा। तो t की वैल्यू हमने पुट की, तो y इज इक्वल टू uy की वैल्यू क्या होती है? दैट इज uy इज u sin थीटा इंटू एक्स अपॉन यू cos थीटा माइनस हाफ जी। टी की वैल्यू क्या हो गई? टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, अब देखिए, यू से यू कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया? एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर में आगे ले लेता हूं या मैं पीछे ले लूंगा, तो हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस माइनस अंदर ले लिया एक्स स्क्वायर। क्या आपको समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हुआ? अब देखिए,
इसको अगर इससे कंपेयर करें तो देखिए x tan थीटा इज इक्वल टू बी एक्स, दैट मीन्स b विल बी इक्वल टू व्हाट tan थीटा, एंड ax square is equal to this into x square, so this is the value of a. So here it is proved that path of projectile is parabola. So above equation shows that path of projectile is parabola. So here your projectile for making angle theta for with surface gets complete. In next or after next lecture we will talk about the projectile parallel to the horizontal surface.